मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगी कि हम लोग अपना सेशन जल्द ही शुरू करेंगे। सेशन में बने रहें। हमारे आज के एक्सपर्ट स्पीकर मिस्टर हर्षा हमें जल्द ही ज्वाइन करेंगे। हम लोग अपना सेशन जल्द ही शुरू करेंगे। सेशन में बने रहें। So I request Harsha to take it forward from here. Share your views about the market and other asset classes, about all the financial asset classes, basically. Thank you. Yeah, thanks, Anand. Good evening, friends. If you look at equity markets, markets have remained quite volatile for the past several months. Initially, around October of 2021, we saw the peak of the market, and for about a period of about 3 quarters, we have seen consistent downtrend. And in the last couple of months, we have seen once again markets pulling back to almost earlier highs. Now, when you try to understand the volatility and the reasons behind this, it's clear that most of these issues are related to global factors, and nothing is India specific in that sense. Why I'm stressing this point is, if you looked at our markets from last 5-6 years perspective, most of the concerns used to be India specific concerns. Either some of the sectors of our economy were in doldrums, let's say real estate, or we had issues in the NBFC segment, we had crisis in the banking system. All of these were specific to India. However, if you look at markets now or in the recent times, so most of the volatility has been caused by global factors, which are not in our control or which are not emanating from India per se. But obviously, since market is connected across the globe, we will have to bear this volatility. The point I'm trying to make is, as global issues settle down, I think India will stand out as an investment destination and will continue to see favorable investments from foreigners. And anyways, the domestic flows have also been quite consistent. As far as the issues for the volatility that have been seen in the markets, clearly it's been interest rate. Just a minute. We have seen interest rates and inflation kind of occupying every investor's mind. And with the elevated inflation, we also had Russia and Ukraine coming and ratcheting up inflation across the globe, across commodities, which led to more hawkish than anticipated moves from central banks. And the commentary was also indicating to further interest rate hikes as we go forward. And that's what kind of spooked the markets, because there is always an inverse correlation between interest rate hikes and equity valuations. And that's what we saw during that period of volatility. And we also saw in India foreign investors removing money consistently, almost $4 to $5 billion every month for a period of about 9 months.
But the good thing was at the same time, the domestic flows were very, very consistent. And that's the reason why markets didn't show that kind of volatility. And just to give some example, if you look at the first COVID wave between March 2020 and up to June 2020, in a span of about 3 months, foreigners sold about 65,000 crore worth of Indian equities. Markets fell more than 30% because every other investor was also panicking and trying to sell at that point of time. But in the period of October to June 2022, we did see almost 4 times more than what they had sold during that first COVID wave. They sold more than 2.5 lakh crore worth of Indian equities, but markets actually went down only 18% from peak to the lowest level of 15,200 on the Nifty. Because the domestic flows were very, very consistent all through this period, and SIP flows consistently went up during the period. And also another interesting point is when FIIs have started to relook at India, in a span of about 2 months, they have put in about 3.5 billions. This is just about 10% of what they've sold during the 9 months. Okay? But even with just the 10% investments coming back to India, market is almost back to its original highs. So the point I'm trying to make is the cost of exiting equities is very, very high in an economy which is doing very well, where valuations are not very expensive. They're slightly more than fair value. So to that extent, rather than trying to time the markets, it's better to remain invested and or make disciplined investments with a longer term focus. Now, as far as inflation is concerned, there are already positive signs. We have already seen most commodities coming off quite rapidly in the last couple of months. Off late, we have also seen crude correcting below $100, which was one of the tricky issues for the globe as well as India in particular. As far as food inflation is concerned, India is much better placed compared to globe because generally we are being self-sufficient in food, and monsoon has been good this year as well. So I don't think there will be an issue of food inflation in India. So overall, when we look at inflation, I think it's going to moderate on a global basis and more so in the Indian context as well. And rupee has also remained broadly stable. To that extent, I think inflation expectations will start to go down, which would limit interest rate hikes going forward, and hence there won't be any such severe valuation correction going forward in our view. However, there still be some more pain left. June quarter was not a great quarter. We have seen earnings getting cut by about 2 to 3% on an overall basis. That could continue into September quarter because you will have some of the older inventory coming into the market, which were at higher levels. So the pressure on margins will continue. But starting December, assuming commodities will remain at current levels or at lower levels, you will start seeing better profitability as well as better handle on inflation. So overall on the markets, we believe that while we are in the early stages of seeing moderation in inflation, one should continue to watch out for what happens on energy side, because other commodities doesn't seem like they can bounce back, but crude is the one where because of geopolitical issues, etc., there can be spike up again. That's something that we need to watch out for, and we will continue to see volatility in the market due to what happens on the crude market. As far as earnings are concerned, as I said, there has been a cut of about 2 to 3% this year after the June results. Currently, the Nifty EPS on a consensus basis is somewhere from 840 rupees. We could see further downgrade in earnings to a lower number in the September quarter, but I don't think that will lead to financial year 24 numbers getting cut because most of these issues related to commodity cost pressure or inflation seems to be transient and will not really matter in the financial year 2024. So if that thesis comes through, then markets are at reasonable valuations. We would have liked it to be at lower valuations like they were in the middle of June, which was the lowest level that our valuations had gone down to. But nevertheless, these are also not very expensive valuations. But at the same time, one has to be careful in terms of global factors and the volatility that can come to our market.
So our suggestion would be to stagger investments over a period of time with a long-term focus. And obviously, if there is volatility in the next 3 to 6 months, that should be a good time to build your equity allocation. As far as the sectors or themes that we like at this point of time, we see that domestic businesses are better placed as compared to reasonably strong over the next few years. As far as valuations are concerned, some of the export-oriented businesses are still valued at very high multiples. So to that extent, outperformance from those will be limited, whereas domestic-facing businesses could give you that re-rating as well. So our overweight stance would be on mostly domestic businesses. And within domestic businesses, we like some of the cyclical names where valuations are also not so high. For example, banking and financials, auto, cement, capital goods, industrials. These are some of the sectors where we believe that not only there is a positive surprise that can happen on earnings, but also the valuations can move up meaningfully. So that's where our overweight positions have been. As far as IT and FMCG are concerned, due to business concern or due to valuation concerns, we have been underweight. And we continue to believe that while these sectors may offer steady earnings growth, it will not be very high as compared to the market or some other sectors that I mentioned. And hence, re-rating from already high valuation levels would be very difficult for that, for those sectors. Between large, mid, and small, we continue to favor large cap at this point of time because the correction has been much faster in large caps and also much deeper. So to that extent, in case the volatility continues for a longer period of time, the downside will be limited in large caps. However, if one is looking at next 3 to 5 years without really bothering about what happens in the next 3 to 6 months, then an allocation to mid or small caps can also be looked at. But we generally advise staggered investments for the mid and small cap allocation rather than lump sum, especially at these valuations. So that would be our overall take on the markets, valuations, and various sectors within our portfolios, etc. I'll be happy to take questions. I'll pause here. Thank you. Sure, thank you, Harsha. Thanks for your insight. So जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा है कि मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई है पिछले कुछ लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में, और उसने सारी की सारी नेगेटिव न्यूज़ को एब्जॉर्ब करा है, जैसे कि हाई इन्फ्लेशन चल रहा था, रिसेशन, जियोपॉलिटिकल रिस्क वाली बात थी, और फिर भी मार्केट एक तरह से हमें स्ट्रेंथ दिखाया है। तो क्या आपको ये लगता है कि यहाँ से एक नए बुल रन की स्टार्ट होनी शुरू हो गई है? वो तो बोलना थोड़ा मेरे ख्याल से प्रीमेच्योर लगेगा, बट डेफिनेटली मेरे ख्याल से एक अच्छा सा बेस बना है, अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ है 9 मंथ्स के लिए, काफी सारा वैल्यूएशन करेक्शन भी हुआ है अक्रॉस सेगमेंट्स, अक्रॉस सेक्टर्स। सो लगता तो यही है कि ये कंसोलिडेशन फेज है, वेदर इट विल स्टार्ट इनटू अ न्यू बुल मार्केट or it will continue to consolidate further, it's a difficult call to take. But if अगर earnings जो हम बात कर रहे थे, अगर वो सितंबर क्वार्टर के बाद डाउनग्रेड्स नहीं आएंगे या अगर स्टेबिलिटी आ जाता है, then people will forget what has happened in the interim and we will start to focus on financial year 24. In that case, valuation will not look so expensive. So अगर लेकिन इन्फ्लेशन मान लीजिए और बढ़ता है, क्रूड प्राइसेस और ऊपर जाते हैं, तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स दिसंबर क्वार्टर के भी खराब हो सकते हैं, आगे भी खराब हो सकते हैं। तो उस जंक्चर में शायद वैल्यूएशन महंगा दिखेगा। तो अभी मेरे हिसाब से 2-3 महीने वेट करके देखना चाहिए कि मार्केट के इंटरनल्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस फंडामेंटल्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं और वैल्यूएशन कहाँ पे। तो उस हिसाब से जैसे कि आपने बोला स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एंड कंसोलिडेशन में हैपन फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स एज वेल, जैसा आपने बताया, तो उस हिसाब से तो एसआईपी रूट में ही लगाना ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर हम सजेस्ट करें लंप सम इन्वेस्टमेंट स्टैगर्ड मैनर में, या फिर एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, चाहे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन हो या फिर लॉन्ग टर्म हो। So just wanted to know कि SIP is better way as compared to current market situation or lump sum in a staggered manner.
देखिए, एक बात तो सबको पता है कि मार्केट टाइम करना इतना आसान नहीं है। कोविड के टाइम में किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया कितना नीचे जाएगा, और उतनी ही फास्ट मार्केट रिकवर भी हो गया। बिल्कुल। जिसने उस टाइम पे पैनिक किया शायद वो मार्केट से बाहर चले गए, और हम्म। शायद जो टाइम कर रहे थे कि पूरे सारे क्लैरिटी मिले, उन्होंने भी इन्वेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जब तक क्लैरिटी मिला मार्केट ऊपर पहुंच गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब वी देखते शेप हुए रिकवरी दिखेगी हम लोगों बिल्कुल। ने सबने वी शेप रिकवरी देखी। यस। हाँ बिल्कुल। और अभी का बात करें, जून फर्स्ट वीक में शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि मार्केट 2 महीने में 18,000 फिर वापस आ जाए। हम्म। तो इस जो मार्केट मूव्स हैं ये बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं शॉर्ट टर्म में प्रिडिक्ट करना। लॉन्गर टर्म में फिर भी वो अर्निंग्स को देखते हुए, फंडामेंटल्स को देखते हुए आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ब्रॉडली डायरेक्शन क्या होगा, कितना क्वांटम में ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। हम्म। तो हमारा मानना यही है कि since it is so difficult to time the markets, it's always better to go for SIPs और STPs in a disciplined way. उसमें दो फायदा है, एक तो आपका इन्वेस्टमेंट्स रेगुलर होते हैं, दूसरा हम्म। आपका डिसिप्लिन इतना रहता है कि आप लॉन्ग टर्म फोकस करना चालू करते हैं। आप बिल्कुल। शॉर्ट टर्म में क्या वोलेटिलिटी है वो इतना दिखते नहीं, उसके हिसाब से भी वो अच्छा है। तो अनलेस मार्केट का वैल्यूएशन इतना सस्ता हो जाए जहाँ पे आपको SIP करने का मतलब नहीं है और लमसम डालना ही बेटर है, हम्म। उस हिसाब में, या जिस समय वैल्यूएशन इतना एक्सपेंसिव हो जाते हैं जहाँ पे आपको इक्विटी से बाहर जाना चाहिए और SIP करके भी पैसा टूट सकता है, वही दो चीज़ों में आप दो ही मार्केट प्लेसेस में आपको दूसरे कॉल लेना चाहिए। बट अदरवाइज मोस्ट नॉर्मल मार्केट कंडीशंस SIP या STP करना ही बेटर। सो अगर मार्केट बहुत ज्यादा एकदम ही करेक्शन मोड में आ जाता है तो लमसम हम अपने क्लाइंट्स को और पार्टनर्स को सजेस्ट कर सकते हैं। आई कम्प्लीटली एग्री एक बाय पॉइंट हर्षा जी की। और वैसे एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच वॉलेटिलिटी मार्केट में भी अगर मेंटेन्ड है तो भी एक एसआईपी के रूट के थ्रू गाइस हम लोगों को इन्वेस्ट कराना चाहिए। सो इसमें जैसे आपने कुछ सेक्टर्स की बात करी तो उसमें ये बात कि एक सेक्टर फंड रिकमेंड करना चाहिए हम लोगों को या फिर एक फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप फंड काइंड ऑफ हमें रिकमेंड करना चाहिए। थोड़ा सा उस पर आप बताइए क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूजन रहा है एडवाइजर के माइंड में। तो प्लीज उस पर थोड़ा सा हेल्प करिए। देखिए, डाइवर्सिफाइड फंड अगर आप रेकमेंड करते हैं तो वो ऑल वेदर जैसे फंड्स होते हैं, मतलब वहाँ पे भी वोलेटिलिटी होगा लेकिन उसमें फंड मैनेजर को फ्रीडम है एक सेक्टर से दूसरे में जाने का या किसी को बेच के खरीदने का। हम्म। तो when you look at over a long term, diversified funds will keep changing their sector allocation, stock selection, और आपको एक reasonable degree of स्टेबल और स्टेडी रिटर्न्स मिलते हैं। बट अगर आप सेक्टर फंड्स को देखें तो आपका एंट्री और एग्जिट दोनों बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि क्या बिल्कुल वैल्यूएशन में आप एंटर कर रहे हैं और क्या वैल्यूएशन में आप एग्जिट कर रहे हैं। अगर ये दोनों डिसीजन में एक भी डिसीजन गलत हुआ तो आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहेगा। बिल्कुल फॉर बिल्कुल। जैसे एग्जांपल, कि जैसे फार्मा में देखा गया था 2014 से लेकर और आई थिंक 18-19 तक कोई रिटर्न नहीं मिल पाया था इन्वेस्टर्स को। सो बिल्कुल, देयर वाज अ पीरियड इन 2000 फॉर एग्जांपल जब आईटी सबके पोर्टफोलियो में होता था, सबको आईटी में इन्वेस्ट करना था, लेकिन अगर किसी ने उसको लॉन्ग टर्म की तरफ 20 साल रख दिए तो शायद ही वो फंड्स डाइवर्सिफाइड फंड्स को बीट किए। बिल्कुल सिमिलरली आपको याद होगा एक जमाना था जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स सबसे बेटर रिटर्न्स दे रहे, एग्री लेकिन अगर उसी 2005 2006 में 7 8 तक। बट अगर बिल्कुल उसको 2020 तक कंटिन्यू किए हैं तो शायद ही उनको उतना अच्छा रिटर्न मिला है। तो इसलिए एंट्री और एग्जिट दोनों बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, और वहाँ पे आपको मतलब फिर एक टाइमिंग का इश्यू आ जाता है। तो सिंस टाइमिंग करना इतना आसान नहीं है तो हम्म। बेटर है कि आप सेक्टर फंड्स में बहुत ही कम लगाएं, 5% 10% आपके रिस्क के हिसाब से, और बिल्कुल। ज़्यादातर पैसा डाइवर्सिफाइड फंड्स में। सो गाइस एज हर्षा जी मेंशन तो इट्स बेटर टू ज्यादातर पैसा अपना फ्लेक्सी कैप फंड में या डाइवर्सिफाइड फंड में जैसे मल्टी कैप फंड भी अवेलेबल है कैटेगराइजेशन में तो उसमें लगाया जाए रादर देन हम पैसा किसी सेक्टर फंड में दे। सेक्टर फंड में हम अगर किसी सेक्टर में बुलिश भी हैं तो उसको एक सर्टेन एलोकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो दें 5 से 10% जैसा हर्षा ने मेंशन करा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस अब हम थोड़ा सा डेट के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे कि डेट में जैसे कि इंटरेस्ट रेट हाइक अभी हम लोगों ने काफी अग्रेसिव देखे हैं अक्रॉस द ग्लोब हुए हैं। अगर हम बात करते हैं ईसीबी की फेड की आरबीआई की
तो इन्होंने काफी अग्रेसिवली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हर्षा जी इंटरेस्ट रेट हाइक करें। तो इनसे क्या फर्दर आपको लगता है कि कैन बी एक्सपेक्ट कि फर्दर भी यही पेस इंटरेस्ट रेट हाइक की बनी रहेगी जो है, या फिर हम थोड़ा सा जैसे कि इन्फ्लेशन का डाटा हम लोगों ने देखा है यूएस का भी और इंडिया का भी पिछले 1-2 महीने का थोड़ा थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, तो आरबीआई या बाकी के सेंट्रल बैंक थोड़े से नर्म होंगे इसमें? बिल्कुल, अगर आप रिसेंट इन्फ्लेशन डेटा देखेंगे तो एक तरफ का मॉडरेशन दिखाई दे रहा है, और एक्सपेक्टेशन यही है जो हमने पहले इक्विटी मार्केट के बारे में जब भी बात किया, हम बात किए थे कि कमोडिटी इन्फ्लेशन और ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, तो लगता तो यही है कि आगे जाके 3-6 महीने में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंट्रोल में आना चाहिए। अगर वो थीसिस करेक्ट है तो आपको शायद ही इतने कंटिन्यूस पेस में इंटरेस्ट रेट्स को हाइक करने की ज़रूरत है। तो यानी कि देखिए, अगर इंडिया का बात करें, करंटली इन्फ्लेशन 6.7% है, और एक्सपेक्टेशन यही है कि एज यू गेट इनटू द सेकेंड हाफ ये 6% की ओर नीचे आएगा, और ऑलरेडी अपना रेपो रेट 5.4%। बहुत ज़्यादा गैप नहीं बचेगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक यहाँ से शायद नहीं होगा। लेकिन यूएस और बाकी इकोनॉमीज में वो गैप ज़्यादा है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट रेट्स अभी भी बहुत नीचे हैं और उनकी इन्फ्लेशन हमारे इन्फ्लेशन से ऊपर है। तो शायद ग्लोबल इकोनॉमीज में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक्स दिखाई देंगे कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू इंडिया। और इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स दिखाई देंगे, शायद वो 1 या 2 बार यहाँ से हो सकता है नेक्स्ट 12 महीने में, बट उसके बाद इतना तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ने का आशंका नहीं है। तो उस हिसाब से लॉन्गर टेनर बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो अभी भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने का रिस्क है, आपका कैपिटल डिप्रिशिएट हो सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म फोकस्ड इंस्ट्रूमेंट्स में रखते हैं तो बहुत जल्दी रिप्राइस होगा, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगा आपको लॉन्गर ड्यूरेशन में उसको शिफ्ट कर सकते हैं। So at least some time you should be in shorter duration funds, and when you feel like interest rates have peaked out, then you should be moving into longer duration debt. सो उसके लिए फिर इन्फ्लेशन का डाटा रेगुलरली वॉच रखना पड़ेगा हम लोगों को और पार्टनर्स को हमारे को, सो दैट वी कैन टेक अ व्यू और डायरेक्शन फॉर आरबीआई इन एडवांस कि भाई क्या हो सकता है। एम आई राइट हर्षा जी? Yes, that's right. ओके ओके। सो गाइस, जैसा हर्षा जी ने कहा, तो अभी जैसा कि हम लोग भी रेगुलरली अपने हाउस में यही बात बोलते हैं कि भाई शॉर्टर एंड ऑफ द कर्व पे रहें, शॉर्ट टर्म फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें, तो अभी वही मेंटेन करें। मगर किसी का भी अगर लॉन्ग टर्म का होराइजन है तो जैसा हर्षा जी ने कहा 1 या 2 हाइक्स हम लोग और फर्दर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आरबीआई की ओर से, तो किसी का लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो वो थोड़ा थोड़ा उधर इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं इस समय, थोड़ा थोड़ा, वो भी नॉट 100% ऑफ द एलोकेशन। दे कैन स्टार्ट बाय 10 or 15% लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड्स में या मीडियम टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड्स में। तो हर्षा जी, इसमें एफआई का जो अभी हम लोगों ने देखा पिछले कुछ महीनों में एफआई काफी तेजी से बाहर निकल रहे थे हमारी मार्केट से, इक्विटी मार्केट में से, और लास्ट मंथ अगर हम देखें जुलाई में तो वो थोड़ा सा पेज जब स्लो डाउन हुआ फिर, तो क्या आपको लगता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस हैं, एफआई फिर पॉजिटिव बायर्स बन सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड इन शॉर्ट टर्म में अभी? देखिए, ये तो प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये एक इन्वेस्टर का सेंटिमेंट नहीं है। मतलब हजारों लाखों इन्वेस्टर है फॉरेन लोकेशंस में, हर एक का अलग अलग फंड्स होंगे, अलग अलग फ्लोज होंगे, अलग अलग डिसीशंस होंगे। तो कलेक्टिवली क्या वो डिसीजन पे आएगा, वो सोचना थोड़ा मुश्किल है। बट लेकिन अगर आप लास्ट 6 या 8 वीक का डेटा देखेंगे तो क्लियरली जो सेलिंग था वो रुक गया है। नॉट ओनली इट हैज स्टॉप्ड, वी हैव आल्सो सीन कंटिन्यूअस बाइंग फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो हमारा यही है कि हो सकता है कि जब तक इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स पे क्लैरिटी ना मिले तब तक फ्लोज वोलेटाइल रह सकता है। बट उसके बियॉन्ड तो इंडिया में डेफिनेटली इंटरेस्ट वापस आएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि इंडिया स्पेसिफिक कोई नेगेटिव नहीं है। अभी जो नेगेटिव है, ग्लोबल क्रूड प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये सारे जो कंसर्न्स है, दीज आर ऑल रिलेटेड टू ग्लोबल फैक्टर्स। और जैसे जैसे इसका नॉर्मलाइजेशन होगा, इंडिया विल स्टिल कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द फेवर्ड मार्केट्स फॉर इन्वेस्टर्स। बिल्कुल, जैसा
क्रूड की आपने बात की, सॉरी मैं बीच में बात कर रहा हूँ। क्रूड की आपने बात की तो वो भी काफी अच्छे तरीके से, शायद रिसेशन की डर की वजह से उसमें भी हमने काफी अच्छा करेक्शन देखा है। अभी लेस देन 95-92 डॉलर्स तक टच कर गया था पर बैरल ब्रेंट क्रूड। तो उससे आपको लगता है कि इन्फ्लेशन भी थोड़ा फर्दर कूल डाउन होगा गोइंग बाय नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स के अंदर? उसका इम्पैक्ट कुछ आएगा अगर गवर्नमेंट कुछ क्रूड अपने पेट्रोलियम प्राइसेस कम करती है तो? बिल्कुल ये हो सकता है। देखिए अभी एनर्जी बास्केट छोड़ के बाकी जितने भी कमोडिटीज थे, हार्ड कमोडिटीज, एल्यूमिनियम, जिंक, निकेल एक्सेट्रा, ये सब का करेक्शन ऑलरेडी एक तरफ से चालू हो गया था। फूड इन्फ्लेशन जैसे मैंने हम्म, पहले बताया वो इंडिया में इतना बहुत ज़्यादा नहीं था कंपेयर टू वेस्टर्न मार्केट। एक ही जो चीज़ था जो जिसके ऊपर सबका कंसर्न था वो क्रूड ऑयल प्राइसेस, और वहाँ पे भी अभी गिरावट चालू हुआ है। तो होपफुली अगर यहीं पे रहेगा या इससे भी नीचे जाएगा तो इन्फ्लेशन पे डेफिनेटली काफ़ी कुछ कंट्रोल आ सकता है। ओके ओके, दैट्स इट। सो अभी ग्लोबली अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की, जिस हिसाब से हम लोग रियल एस्टेट बबल क्राइसिस देख रहे हैं अपना चाइना में, या फिर हम रिसेशन की बात कर रहे हैं अदर डेवलप्ड नेशंस में, यूरोप में और यूएस में, तो उसका क्या इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में इंडिया में हम क्या देख, हम हमारे ऊपर कुछ इम्पैक्ट आएगा उस चीज़ का, या वी बिकॉज वी आर सेल्फ रिलायंट इन द सेंस ऑफ कंज्यूमर इकोनॉमी वी आर, तो वो हम लोग इजीली पास आउट कर जाएंगे ये पेज? आपका क्या व्यू रहेगा उस पर? देखिए कुछ तो नेगेटिव सेंटिमेंट उसके वजह से होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो ग्लोबली इन्वेस्ट करते हैं अगर उनको उनके डोमेस्टिक मार्केट्स में या उनके मेजर मार्केट्स में अगर परिस्थिति ठीक नहीं है तो उनका शायद जो इमर्जिंग मार्केट्स का व्यू होगा वो इतना शायद स्ट्रांग नहीं रहेगा। ओके। दूसरा यही है कि जहाँ पे इन्फ्लेशन सॉरी रिसेशन होगा वहाँ पे जो कंपनीज क्लोजली लिंक्ड हैं, लेट्स से मान लीजिए कि कोई एक रीजन में रिसेशन है और उसी रीजन में कोई कंपनी का पूरा एक्सपोर्ट्स आ रहा है तो उस कंपनी को इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर पूरा लिस्टेड इंडिया देखेंगे या ओवरऑल हमारे इकोनॉमी देखेंगे, जैसे आपने बताया कि हमारा ज़्यादातर डिपेंडेंस डोमेस्टिक मार्केट्स पे है, एक्सपोर्ट्स पे कुछ ही सेक्टर्स डिपेंडेंट है, या कुछ ही परसेंटेज ऑफ आवर ओवरऑल टर्नओवर कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। तो जिस हिसाब से कौन से रीजन के ऊपर डिपेंडेंस है और वहाँ पे क्या हो रहा है उससे उनका एक्सपोर्ट्स इनकम या उनका बिजनेस इम्पैक्ट होगा। बट लेकिन पूरे इंडिया के बिजनेसेस पे इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। इनफैक्ट शायद एक पॉजिटिव भी है ये सब में कि अगर ग्लोबली ग्रोथ स्लो डाउन होता है या रिसेशन की ओर जाता है तो कमोडिटी प्राइसेस तो काफ़ी करेक्ट हो जाते हैं, ऑलरेडी हमें वो बिल्कुल। देखने को मिल रहा है। अगर वो होता है तो ऑब्वियसली अपने इकोनॉमी के लिए एज वेल एज ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया, इट इज़ अ पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन फॉर अस। आई एग्री, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक्स फॉर इट। अच्छा, तो करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से हर्षा, इक्विटी देखें, डेट देखें, जिस हिसाब से भी करंट मार्केट सिनेरियो हमने डिस्कस करा इन फ्रंट ऑफ आवर पार्टनर्स, तो कोई भी क्लाइंट का फाइनेंशियल प्लान बनाते हुए क्या आइडल एसेट एलोकेशन उन लोगों को करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से वो आइडल एसेट एलोकेशन अप्रोच फॉलो करनी चाहिए क्लाइंट को प्रपोज करने से पहले? उस पर थोड़ा सा प्लीज हेल्प करिए। देखिए ये तो हर एक का शर्ट साइज अलग है, राइट? आपके शर्ट साइज अलग है, मेरा अलग है, किसी और का अलग हो सकता है, और सबका एक ही रिस्क एपेटाइट नहीं है, सबका रिस्क टॉलरेंस अलग है, इनकम लेवल्स अलग है, लिक्विडिटी नीड्स अलग है। तो उस हिसाब से ही हर एक का प्लान अलग होगा, तो इसमें सेम प्लान तो नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप इक्विटी की बात करें, अभी का वैल्यूएशन फेयर लेवल से थोड़ा सा ही महंगा हुआ है, वो भी अभी लास्ट के जो कुछ ही वीक्स में जो मार्केट ऊपर गया है उसके वजह से हुआ है। तो इतना एक्सपेंसिव मार्केट नहीं। अगर मान लीजिए किसी का इन्वेस्टमेंट लेवल एक्स होना चाहिए तो अभी आप एक्स के आसपास रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं। हाँ। अगर वैल्यूएशंस नीचे आएंगे तो ज़रूर आपका इक्विटी एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। Okay, okay, okay. So these are all my queries in my mind. Thank you, Harsha. Suruchi, we can open the forum for our partners if they have any queries. श्योर। सो थैंक यू सो मच। और मैं अपने सभी पार्टनर्स और सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यदि आपके कोई भी सवाल है, आप चैट के माध्यम से अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, जिन्हें हम एक एक करके आंसर करेंगे।
एक क्वेश्चन मिस्टर थॉमस के पास से है, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल रिसेशन ऑन इंडियन मार्केट? ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर ही डिस्कस किया कर है लिया। ये वाला पॉइंट। तो एंड फर्दर इज देयर एनी क्वेरी अपार्ट फ्रॉम दिस? So there are no further queries that I can see. ओके, देयर वाज ओनली वन Yes. व्हिच So thank you so तो much, Mr. Harsha, for joining us and sharing your valuable thoughts with us. Thank you आपको so बहुत much. बहुत धन्यवाद हर्षा जी, आपका आने के लिए। अपना पूरा ज्ञान हम लोगों को आपने एक आधे घंटे के अंदर पूरा मार्केट का हमारा पूरा का पूरा अपना ज्ञान दिया। अबाउट इक्विटी, डेट, क्रूड भी हमने डिस्कस करा, और इट्स अ वेरी वेरी वैल्यूएबल सेशन। आई कैन अंडरस्टैंड दिस फॉर आवर पार्टनर्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच। Thank you. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा जी। Thank और you. मैं आनंद जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी जिन्होंने आज के सेशन को हमें ज्वाइन किया और पार्टिसिपेटिव होके हम सभी से अपने क्वेश्चंस ही पूछे और इस सेशन को अटेंड किया। मैं सभी पार्टनर्स को और पार्टिसिपेंट्स को ये बताना चाहूंगी कि इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। ये इवेंट यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग।